اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ تو آج میں جو آپ کے سامنے اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے دعوت اللہ۔ دعوت اللہ، دعوت اللہ دراصل کوئی مذہبی فریضہ نہیں ہے جس کو انجام دینا ہے۔ دعوت اللہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ خوشخبری دینا کہ خدا نے ان کے لیے ایک ایسی جنت بنائی ہے جو اچھی زندگی گزارنے والوں کو موت کے بعد دی جائے گی، جس کو قرآن کانسیپٹ آف آخرت کہتی ہے۔ دعوت اللہ دراصل یہ ہے کہ ول آف گاڈ کو انسانوں تک پہنچانا اور انسانوں کو بتانا کہ خالق کائنات جس نے پوری کائنات کو بنایا، جس نے انسان کو بھی بنایا، وہ انسان سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن دراصل السلام علیکم، آئیے تشریف لائیے۔ قرآن دراصل ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں خدا اپنی مرضی کا اعلان رسول کے ذریعے انسانوں میں کرتا ہے اور انسانوں کو اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ وہی خالق، وہی مالک جو پوری یونیورس کا کریٹر ہے، جو انسان کا کریٹر ہے، وہ انسان سے کیا چاہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن ایک رحمت ہے انسان کے لیے، جس کے ذریعے وہ اپنی رب کی مرضی کو جان سکتا ہے۔ قرآن دراصل خدا کا تخلیقی نقشہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑے گا کہ کریشن پلان آف گاڈ کیا ہے، اور اکارڈنگلی جب آپ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں گے تو میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ کریشن پلان آف گاڈ کو جانیے، پھر میپنگ آف لائف کیجیے۔ لائف کو میپ کرنا پڑتا ہے کہ کیسے لے کے چلوں گا۔ تو میں جہاں تک سمجھ سکا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں آپ سے، جہاں تک میں قرآن سے بات سمجھ سکا وہ یہ سمجھ سکا کہ کریشن پلان کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ آدم جو تھا، آدم جو مین کائنڈ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ایک جنتی مخلوق تھے، ایک جنتی مخلوق تھے۔ یعنی جنت انسان کا برتھ رائٹ تھا۔ یعنی کریشن کے فرسٹ فیس میں یا مرحلے اول میں انسان جنت کا برتھ رائٹ رکھا ہوا تھا، تو جنت میں بستا تھا۔ ایک لمبی بات ہے، وہ میں پوری نہیں لوں گا ابھی۔ کچھ اپنی نادانیوں کی وجہ سے وہ اپنے اس برتھ رائٹ کو کھو دیا اور خدا نے اس کو اس زمین کے اوپر بسا دیا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پلانٹ ارتھ۔ اور خدا نے کہا کہ تم یہاں رہو، میرے نبی آئیں گے، میری کتاب بتائیں گے تم کو، جو اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا اس کے لیے کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے۔ تو کریشن پلان کے مطابق ہم کو ایک بات یہ معلوم پڑی کہ انسان، جنت انسان کا برتھ رائٹ تھا۔ عبدالرحمن ناک ایسا صاف کرو۔ ہاں، انسان کا برتھ رائٹ تھا جو اپنی نادانیوں کی وجہ
میں فیصلہ کیا جائے گا اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کی لائف اکارڈنگلی اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کی جائے گی، منافق مردوں کو اور منافق اور پھر آگے کی آیت بتا رہی ہے تاکہ اللہ آزمائے، تاکہ اللہ آزمائے، کس کو آزمائے؟ ہم بھی ایک دن مر جائیں گے۔ اب یہاں ایک سلیکشن پروسیس ہے، جس سلیکشن پروسیس کے تحت جو لوگ اس کے اندر کامیاب ہوں گے وہ جنت کے مستحق ہوں گے، اور جو اس میں کامیاب نہیں ہوں گے ان کو خدا ایک کائناتی کوڑا دان ہے جس کا نام جہنم ہے، جہنم ہے یا جنت دوزخ ہے، اس کے اندر اس کو پھینک دے گا۔ یعنی خدا نے جو انسان کو لائف دی ہے وہ بنیادی طور پر دو فیسز میں ڈیوائڈ ہے۔ لائف از بین ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو فیسز۔ فرسٹ جو ہماری بایولوجیکل لائف ہے، جس کو میں کہوں گا پری ڈیتھ پیریڈ، اور دوسرا ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ، مرنے کے بعد کی زندگی۔ زندگی ایک مرتبہ وجود میں آ جاتی ہے تو قرآن کے مطابق وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، فیز بدلتے ہیں اس کے۔ تو ابھی ہم لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں یا جتنے انسان اس دنیا میں زندہ ہے وہ پری ڈیتھ پیریڈ میں ہیں۔ ہم سب پہ موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ چیز جو زندہ ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہم بھی ایک دن مر جائیں گے، ہم بھی ایک دن مر جائیں گے، کم عمر میں یا زیادہ عمر میں وہ سوال نہیں ہے، موت یقینی ہے۔ تو اب یہ جو پری ڈیتھ پیریڈ ہے، خدا نے اس پیریڈ کو ٹیسٹ کے لیے رکھا ہے، ٹیسٹ ہے کہ انسان گاڈ اورینٹڈ لائف کو یہاں پر گزارے۔ گاڈ اورینٹڈ لائف کیا ہے؟ گاڈ اورینٹڈ لائف ہے اس کتاب میں خدا کی مرضی جو انسان کے ساتھ میں رسول کی زبان سے ملی ہے اس کو وہ فلفل کرے۔ خدا نے کچھ چیزوں سے آپ کو روکا ہے، اس سے آپ رکیں۔ خدا نے کچھ چیزیں آپ کے لیے حلال اور جائز قرار دی ہے، اس کو آپ کریں۔ دوسرے معنوں میں یہ کتاب کا مین مدعا ہے کہ آپ کی جو نفسیات ہے اس کے اندر آپ کو یہ جو آزادی ملی ہوئی ہے، جو ٹرسٹ ہے آپ کے ساتھ میں آزادی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ آزادی آپ کو پاور دیتی ہے گناہ کرنے کا، اور یہ آزادی آپ کو پاور دیتی ہے نیکی کرنے کی۔ یہ ٹیسٹ کا کروشل پوائنٹ ہے کہ انسان کو آزاد رکھا جائے۔ آزادی نہیں تو ٹیسٹ نہیں۔ کیا سورج کا کوئی ٹیسٹ ہے؟ کوئی بکری کا کوئی ٹیسٹ ہے؟ کوئی جھاڑ کا کوئی ٹیسٹ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ٹیسٹ انسان کا ہے۔ A man has created for the test۔ قرآن کے مطابق یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہم نے امانت کو انسان کے سامنے، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، لمبی آیت ہے مجھے پوری یاد نہیں ہے، تو یہ اس کو اٹھانے سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، کیونکہ انسان جلد باز تھا، ہیسٹی تھا۔ پھر آگے کی آیت بتا رہی ہے تاکہ اللہ آزمائے، تاکہ اللہ آزمائے، کس کو آزمائے؟ مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، مسلم مردوں کو، مسلم عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو، منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ زندگی ایک آزمائش کی زندگی ہے کہ کون ہے جو خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے۔ یہ جو ٹیسٹ کا پیریڈ ہے جس کے اندر آپ خدا کی ول کو اگر پورا کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ پہ موت ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک اور بات آپ کے بات نظر کر دوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جیسے آخرت ایک کانسیپٹ ہے باقاعدہ، اسی طریقے سے کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ ہر انسان کو اسکاٹ فری نہیں چھوڑا گیا ہے۔ حبیب بھائی اسکاٹ فری نہیں ہے، عبد الرحمن اسکاٹ فری نہیں ہے،
कोई भी शख्स यहाँ पर स्कॉट फ्री नहीं है, चाहे वो अमल अपनी किल्वत में कर रहा है या लोगों के बीच में कर रहा है, वो अकाउंट फॉर हो रहा है। और मालिकी यौमिद्दीन एक दिन जजमेंट के लिए बैठेंगे, उस दिन तमाम इंसानों को वो जमा करेंगे अकॉर्डिंग टू योर ओन डीड्स, जो तुम्हारा आमाल है उसके मुताबिक उसके साथ में फ़ैसला किया जाएगा और पोस्ट डेथ पीरियड की लाइफ अकॉर्डिंगली उसके साथ डिसाइड की जाएगी। और जन्नत बदला है तुम्हारे आमाल का। मैं जुर्रत करूँगा यह कहने की कि जन्नत बदला है खुदा के रहम का, नहीं कहा है खुदा ने। अगर वो चाहता तो सबको बख्श के जन्नत में डाल देता, लेकिन खुदा ने यहाँ पर टेस्ट रखा है। और ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि बग़ैर ईवल के आप वर्चू पे नहीं आ सकते। एक ईवलिक सोसाइटी आपको मिलेगी यहाँ पर, उसके अंदर आप वर्चुअस कैसे रह सकते हैं, वो आपका टेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुरान का मेन मुद्दा है इंसान को प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ गुजारने की इनविटेशन देना। यह है दावत कुरान। उसूल पसंद ज़िंदगी, कुरान का मेन मुद्दा है इंसान को उन चीज़ों से फॉरबिट करना, उन चीज़ों से पाबंद करना, उन चीज़ों को उस पर हराम करना जो उसकी ख्वाहिश नफ्स है। तो कुरान डिज़ायर बेस्ड लाइफ नहीं देती है, रीज़न बेस्ड लाइफ देती है। तो रीज़न बेस्ड जब आप लाइफ जीने शुरू करते हैं तो आप रीज़नेबल जब तक किसी के साथ नहीं हो सकते जब तक आपने प्रिंसिपल्स को इख्तियार नहीं किया है। प्रिंसिपल्स आर एसेंशियल। मतलब यह है कि ये दुनिया इंसान की मनमानी जागीर नहीं है जिस तरीके से वो उसको गुजारना है। अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड इस दुनिया को इंसान को गुजारना पड़ेगा। जैसे हमारे लिए जो दीन खुदा ने सेलेक्ट किया है कुरान के मुताबिक, वो इस्लाम है, वो इस्लाम है। मैं जब कह रहा हूँ वो इस्लाम है तो उससे ये मुराद 5 टाइम की नमाज, रमज़ान के रोज़े और बकरीद के गधे और बकरे नहीं है। हर वो फ़ैसला जो इंसान करे उससे उसको सलामती हासिल हो, हर वो फ़ैसला उसको ग्रोथ दे, हर वो फ़ैसला बायस मोमिन का हो, यानी बायस अमन का हो पूरी सोसाइटी के लिए। ये वो मतलब है। तो मैं ये कहता हूँ कि दीन इस्लाम दरअसल दीन इंसानियत नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की कि आप समझते हैं कि इस्लाम इंसानों का दीन है। जी नहीं, इस्लाम तो कायनात का दीन है। वही दीन खुदा ने इंसान को दिया है। सूरज को कभी फसाद करते हुए देखें? ऑक्सीजन को कभी फसाद करते हुए देखें? ग्रेविटी कभी झगड़े में उलझी है किसी के साथ? क्या कोई झाड़ आपस में लड़े हैं? ये पूरे सलामती पे हैं, खुदा के हुक्म के मुताबिक अपनी तस्बीह कर रहे हैं, अपनी सलात कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से सलामती से है। वही दीन जो कायनात का है, खुदा ने वही दीन इंसान को दिया कि इंसान अपना हर फैसला, एक डिफरेंस है, आपको आज़ादी है, उस आज़ादी के तहत में आज़ादी का सही इस्तेमाल कर कर उसी नतीजे पे पहुँचे जिस नतीजे को हम कहते हैं सलामती हासिल करना। ये इस्लाम है। ये मुस्लिम, मोमिन, इस्लाम आप लेबल के एतबार से अगर समझेंगे तो आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। ये लेबल नहीं है, ये तो बिहेवियर है, बिहेवियर है। मैं अभी अब्दुल रहमान से पूछूं कि अब्दुल रहमान, मैं एक हिंदू हूं, मुझे मुसलमान बनना है तो मैं क्या करूं? अब्दुल रहमान मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो अब्दुल रहमान बताएंगे अब मुझे क्या करना है? क्या बताएंगे भाई? सबसे पहले क्या पढ़ना है? मेरे को नहीं आता रे भाई, मेरा नाम रामा कृष्णा है, तुम सिखाओ मेरे को। क्या पढ़ूं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोले तो क्या हो जाऊंगा मैं? मुस्लिम हो जाऊंगा। यही ना? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते जानों हराम हो जाएंगी मेरे पे। जन्नत की टिकट मिल गई, जन्नत एक्सप्रेस की रिजर्वेशन हो गई, फर्स्ट क्लास की, वो भी। हाँ भाई, मैं एक बहुत गंवार आदमी हूँ, सादा सीधा आदमी हूँ। याकूब अलैहिस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले थे या मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद में थे?
ہاں اس سے پہلے آئے کہتے ہیں نا انہوں ابراہیم علیہ السلام تو اس سے بھی پہلے تھے کہتے. تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بول رہے ہیں کہ بیٹے تم پہ موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلم نہ ہو جاؤ. اب یعقوب کے بیٹے تو بیچارے محمد پیدا ہونے سے پہلے مر گئے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو بیچارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مر گئے. تو مطلب ان کو وہاں تک زندہ رہنے کی بات کر رہے تھے کیا پروفٹ؟ بھائی سب معلوم ہے. ہاں نہیں معلوم نکو بولو. اللہ یہ بول رہا ہے کہ مسلم انسان بنا جب سے محمد رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے لاکھوں ہزاروں سینکڑوں لوگ تھے جن کو خدا کتاب میں مسلم کہا ہے. مسلمان ہونے کے لیے کوئی کلمے کی ضرورت نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دا بک. آپ کا ایمان کیا ہے میرے کو نہیں معلوم, آپ کا عقیدہ کیا ہے میرے کو نہیں معلوم. پوری قرآن کے اندر میں ایک سے زیادہ مرتبہ اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے ذاتی طور پر. میں آپ سے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس میں کلمہ ہی نہیں لکھا ہوا ہے. اس میں کلمہ ہی نہیں لکھا ہوا ہے. وائی یو ڈو دیٹ آئی ڈونٹ نو. خالی محمد ایک ہی رسول تھے. یعقوب, سلیمان, داؤد, ابراہیم, نوح, 1,24,000 ایوب, یونس, یہ نبی نہیں تھے. بیچاروں کے نام کدھر گئے؟ کہاں گئے؟ تو اب آپ کو جو سمجھایا جا رہا کہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوتے ہیں, ایمان لانے سے مسلمان ہوتے ہیں, ایک اللہ کو ماننے سے مسلمان ہوتے ہیں, محمد کو آخری رسول ماننا ہے, اوپر لگے ہوئے فرشتوں کو ماننا ہے. آپ کی مرضی ماننا ہے تو مانیے, نہیں ماننا ہے تو مت مانیے, لیکن کتاب میں یہ ماننے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. کتاب میں ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے, مسلمان ہونے کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے. وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ شرفو بھائی آپ قرآن لیجئے, 3 نمبر کا سورہ آیت نمبر 17 پڑھیے. صرف اتنا پکڑ لیجئے میں جو آج کہہ رہا ہوں آپ سے. پوری قرآن کیا چاہتی ہے اس کا نچوڑ ہے اس آیت کے اندر جو آپ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یہ آپ خالی پکڑ لیں گے نا, میں جو بتاؤں گا آپ کو, آپ خدا کی قسم آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں امن آ جائے گا, آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا, آپ لوگوں کے لیے باعث رحمت اور برکت ہو جائیں گے. صرف یہ ایک آیت, ہاں وہ اللہ کی نظر میں دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام. بھائی اتنی بڑی عربی نہیں آتی. دین کے معنی وہ بھی عربی لفظ ہے, اسلام بھی ایک عربی لفظ ہے. میرے کو تو دونوں بھی نہیں آتے سمجھ میں. اسلام وہ تو آپ جو بول رہے ہیں وہ بولنا بھی نہیں آتا. یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے کہ دین, انگریزی میں ٹرانسلیشن ہے دا ریلیجن. Indeed, the religion with God is Islam. Which Islam? What Muslims follow yaar? To keep dadi, to wear topi, to marry 4 women, kill kafirs, بقرعید کے دن بکرا کاٹنا, 5 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کر آنا, 5 ٹائم نماز پڑھنا, وہ اسلام. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول کے داخل ہونا. آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے. میرے کو اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں آتی صاحب. میرے کو جو ورڈ لکھا ہوا ہے وہ ورڈ پڑھتا ہوں, میں ورڈ کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں تو میرے کو سمجھ میں آتی قرآن. اس میں اللہ بول رہا کہ بے شک اللہ کی نظر میں فیصلہ, دین بولے تو فیصلہ, مالکی یوم الدین, فیصلے کے دن کا مالک. کسی کو اعتراض ہے ترجمہ میں؟ یہ آپ کا مترجم کرا ہے دین کا ترجمہ فیصلہ. اس میں دین بولے تو فیصلہ. اللہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی فیصلہ ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام یہ کیپٹل آئی والا اسلام نہیں. اسلام مانے
सलामती नहीं है साहब. कौन बोल दिया सलामती है इस्लाम के माने? अस्सलाम वालेकुम मैं आपको बोला तो क्या मीनिंग हुए? आप पर अब्दुल रहमान पर सलामती हो. वालेकुम अस्सलाम तो उन्होंने पलटा के बोल रहे सेम टू यू. आई लव यू दोनों बोल दिए हम लोग आपस में. तो अल्लाह यहाँ पर क्या बोल रहा? अल्लाह के नज़दीक फैसला जो है वो ये है कि आप, ये किससे बात हो रही? कुरान किससे बात कर रही? शरफू भाई भाई किताब हाथ में है, उनसे बात कर रही. आप पढ़ेंगे तो आपसे बात कर रहे, मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे से बात कर रहा. उसको बोल रहा कि तुम्हारे से कोई भी फैसला, तुम्हारा जो भी फैसला हो वो ये हो जिससे तुमको सलामती हासिल हो. इस्लाम के माने हैं सलामती हासिल होना. सलाम के माने पीस है, इस्लाम के माने सलामती हासिल होना है. अस्सलाम वालेकुम के माने सलामती तुम पर होना है. यू शुड अटेन पीस मतलब क्या हुआ? जिंदगी के अंदर अगर कोई भी फैसला अगर आप करते हैं, चाहे छोटा मामला होगा या बहुत बड़ा मामला होगा, उस मामले में सलामती आपको हासिल होनी चाहिए. हर फैसला करने से पहले आप ये देख लेंगे कि ये मैं जो फैसला करने जा रहा हूँ क्या ये मुझे सलामती दे सकता है या नहीं दे सकता है. अगर आपका फैसला आप जानते हैं कि मुझे सलामती नहीं दे सकता है तो आप कौन है? अकॉर्डिंग टू द कुरान आप फसादी हैं. आप हर फैसला करते वक्त ये देख लीजिए कि आपको इससे सलामती हासिल हो. जब यह सलामती हासिल होती है, जो शख्स इस्लाम का ये जो पीस उसको मिलता है, वो शख्स वहाँ पर मुस्लिम बन जाता है. तो रसूलुल्लाह के आने से पहले, मोहम्मद रसूलुल्लाह आने से पहले हज़ारों लाखों करोड़ों इंसान इस मुस्लिम रहे और मुस्लिम मरे, जो ये किताब कह रही है. आप लोग मोहम्मडन्स हैं, मुस्लिम्स नहीं हैं. यू आर मोहम्मडन्स. क्योंकि इस्लाम तो आपके पास सिवाय मोहम्मद के और कुछ भी नहीं है आपके. अकॉर्डिंग टू द कुरान सारे अंबिया एहतराम और इज़्ज़त और उसवा के तौर पे सब के सब मौजूद है हमारे लिए. हमको ये किताब बता रही है कि हम किसी में फ़र्क नहीं कर सकते. यू कैनॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द प्रॉफिट्स. ऑल प्रॉफिट्स आर इक्वल टू अस. इस ग्रांड चेन में जो अंबिया इकराम की चेन आती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें की एक कड़ी है. ही इज़ नॉट द मोनोपोली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम. क्या किसी हदीस में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है कि इस्लाम मैंने लाया है? आप तो कहते हैं कि मैं दीन इब्राहिम की पैरवी करता हूँ. तो कलमे में इब्राहिम को क्यों भगा दिया आपने? फिर कलमे में ऐड करते ना इब्राहिम को. ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तर्जुमा कीजिए. नहीं है कोई अल्लाह और मोहम्मद उसके रसूल है. सुनाई नहीं दिया, फिर बोलिए. रसूल है. रसूल है मोहम्मद रसूलुल्लाह है. अभी जिन्हें मानो में ऐसा है. नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह है. मौजूद तो नहीं. आप बशर थे. 63 ईयर्स की एज के अंदर अल्लाह ताला आपकी रूह कब्ज़ कर लिया, आप इंतकाल कर गए. मदीने मुनव्वरा के अंदर आपकी जो है मज़ार मुबारक है और आप जन्नतों के अंदर है. आप है बोल रहे हैं यहाँ पर. कैसी बातें हैं सभी? कैसी बात है? He was a man, he died. He was a messenger, he has given his message. And the message is this Quran, what Muhammad has given us. तो अब आप वैल्यू किसकी करेंगे? जो मैसेंजर हमको मैसेज देके गया वो हमारे पास बचा हुआ है. समझ रहे हैं? इस मैसेज को फॉलो करना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो करना, ना कि ऊंचा पायजामा और ऊंचा कुर्ता और टोपी पहन लेकर जो एक ड्रामा बनना. समाजी जोकर है मुसलमान, समाजी जोकर. हर सर्कस में जोकर की ज़रूरत होती है, तो समाज में भी कुछ जोकरों की ज़रूरत है. अजीब लोग हैं. एक छिदरी दाढ़ी है, एक चिप्पा वाला टोपा पहना हुआ है, ब्लू कलर का सूट है, उस पर टाई लगी हुई है, ऊंची पैंट है.
रसूलुल्लाह सूट पहने थे? सूट नहीं पहने थे, दाढ़ी रखे थे। आप बोलिए इधर दाढ़ी रख रहे, उधर सूट पहन रहे, इधर टाई लगा रहे, अजीब मस्खरा बना। क्यों ये जोकरी करते हो यार? सादे सीधे इंसान रहो। कस्टम्स जो सोसाइटी के हैं, अबू जहल भी दाढ़ी रखा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी दाढ़ी रखे थे, तो ये सुन्नत अरब थी। अगर सुन्नत हिंदुस्तान है तो आप भी रखिए, जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कीजिए। वाई यू वांट टू मेक ड्रामास? तो भैया बात यहाँ ये हो रही थी, कुरान का मुद्दा है इंसान को ये बताना कि हर वो फैसला वो करे जिससे उसको सलामती हासिल हो। ठीक। दूसरी जगह पे अल्लाह ताला बोलता है कि तुमसे कोई दीन कबूल नहीं किया जाएगा सिवाय इस्लाम के। मतलब क्या हुआ? कोई फैसला अगर तुम करेंगे जिससे सलामती नहीं है तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। ये मजहब नहीं, ये तो झूठा मजहब है जिसको मानते हैं मुसलमान। ये तो अरब पेगनिज्म है, ये वर्स्ट। ये अरबों की जहालत है जिसके ऊपर लेबल लगाया हुआ है इस्लाम का, जिसपे मोहम्मद अंग्रेज आके सही काम कर रहे थे, मोहम्मडन्स बोलते थे ये लोगों को। ये लोग अपने आप को मुस्लिम बोलने लग गए। All the label Muslims are Mohammedans. They are not Muslims according to the Kitab. There is a vast difference between the Muslim of the book and the Muslims what they call themselves. They have nothing to do. A person who is not following the book, neither following the Prophet, neither he knows anything about the Islam, लेकिन उसके ज़िंदगी के हर फैसले अगर सलामती है तो किताब के मुताबिक वो मुस्लिम है। किताब के मुताबिक a label Muslim can be a book Muslim, can be a, लेकिन every label Muslim is not a Muslim according to the book. इन बातों के फ़र्क को समझिए। दूसरी बात, सूरह मुल्क जो कुरान का एक सूरा है जिसके अंदर अल्लाह ताला अपनी बड़ाई को बयान करते हुए बोलते हैं कि सारी कायनात का मालिक और खालिक खुदा है, उसमें इंसान की मौत और ज़िंदगी के मकसद को बयान किया गया है। हमने मौत और ज़िंदगी को इसलिए बनाया ताकि हम परखें, सो दैट आई कैन टेस्ट कि कौन है जो अहसनुल अमल करे। मतलब क्या हुआ? लाइफ का टेस्ट ये है बेस्ट डीड्स करना, खूबसूरत डीड्स करना। खूबसूरत किसको कहेंगे? जिसके नतीजे निकले, जिसका बेनिफिट खुद को मिले, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर ग्रोथ आए, सोसाइटी में खुशहाली आए। ये ज़मीन एक जन्नती माशरा की शक्ल इख्तियार करना शुरू करे। जो लोग यहाँ जन्नत की माशरे को यहाँ महसूस कर सकेंगे वही जन्नत के एलिजिबल होंगे। ग्रेटर जन्नत की बात कर रहा हूँ, मौत के बाद की ज़िंदगी। जो लोग यहाँ पर खुदा की ब्यूटी को ही नहीं जानते हैं वो क्या जन्नत की बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आइए। जो लोग यहाँ पर खुदा की ब्यूटी से ही वाकिफ़ नहीं है तो जन्नत में तो बोर बन के बनेंगे सबके लिए। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इस किताब का मुद्दा है इंसान को ये बात बताना कि खुदा ने इंसान की ज़िंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक है प्री डेथ पीरियड और एक है पोस्ट डेथ पीरियड। ये प्री डेथ पीरियड इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक बच्चा इम्तिहान के अंदर 3 घंटे गुजारता है। वो उसके बाद की लाइफ के लिए उसका रिज़ल्ट, उसका जो है, उसको जैसे फेलियर अगर है तो ख़त्म हो गया, हाथ में ऑटो रिक्शा आ गया। पास अगर है तो एक ज़िंदगी का एक रुख बदल गया। ये ज़िंदगी इसी तरीके से खुदा ने यहाँ रखी है, सो दैट अ मैन हैज़ पुट टू टेस्ट, कि ताकि वो इंसान को परखे कि कौन है जो खुदा की विल को पूरा कर कर आता है। जब तक का आप मर्ज़ी खुदा जाने बगैर अगर करेंगे, होता क्या है कि हर इंसान को जो ज़िंदगी मिली हुई है वो एक सड़क है लाइफ। ये इस तरीके से खुद रुखी ज़िंदगी की साइकिल ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, बेलगाम, कोई कंट्रोल नहीं। दिल में आया जो करो, शौक़ करो, मौज करो, ऐश करो, अय्याशी करो, एंड जहन्नुम का गड़ा है। दूसरी साइकिल है जो नीचे से शुरू होती है, चढ़ाव वाली ज़िंदगी ऊपर चढ़ती है। थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, थोड़ी मॉडेस्टी रखनी पड़ती है, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन एंड रिजल्ट खुदा की जन्नतों की बशारतें मिलती हैं उन लोगों को। ये
इंसान को इंसान से जोड़ने की किताब है। इस किताब का मेन मकसद है कि पूरी इंसानियत एक होकर रहे, एक खुदा अनसीन गॉड के अंदर बिलीव करे, और हर ह्यूमन चाहे वो कोई भी हो अपने आप को अकाउंटेबल बनाए खुदा के लिए। और मालिक यौमिद्दीन उस दिन सारे लोगों का फ़ैसला उसके अमल के मुताबिक करेगा, उसके अक़ीदे के मुताबिक नहीं करेगा। मेरा दावा है कोई मुझे अगर बता दे कुरान की एक आयत कि फ़ैसला उसके अक़ीदे के मुताबिक अगर होगा, कुरान एक जगह पर भी किसी अक़ीदे को इंडोर्स नहीं करती। कुरान का मेन लुब्बे लबाब है कि इंसान अपने अमल को दुरुस्त रखे। आप जो अहदिन सिरातल मुस्तकीम मांगते हैं, मैंने कई मरतबा बात बताई है, जो सिरात मुस्तकीम जिसको खुदा कह रहा है, जिसमें 10 पॉइंट्स है, उसमें से एक पॉइंट भी खुदा के लिए नहीं, पूरे पॉइंट्स खुदा के ऑर्डर्स हैं जो इंसानों के लिए। यतीम को धक्का नहीं देना, बोली बोलना तो सच बोलना, ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलना। क्या खुदा का क्या लेना देना ज़मीन पर अकड़ के नहीं चलना? कौन सा सजदा रुकू कर रहे हैं आप? जिसके लिए मुसलमान बेचैन होता है, 5 टाइम 52 मरतबा खुदा को बोलता है, अल्लाह मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, मेरे को रास्ता बता, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता बता। अल्लाह मियाँ जो रास्ता बता रहा, उसमें एक टाइम ना तो पूजा है, ना तो एक मरतबा भुक्का मरना है, ना तो एक मरतबा बकरा काटना है, ना एक मरतबा हज करना। सारे इंसानों के बीच में इंसान बनकर रहमत की ज़िंदगी देना और ख़ुद उनके लिए बायस रहमत रहना, वो है सिरात मुस्तकीम। किसी को अगर देखना है तो सूरह अनाम की आयत नंबर 151 to 153 है, 6 नंबर का सूरा है, उसकी आयत नंबर 151 से 153 तक है। उसमें अल्लाह ताला किस तरफ इन्वाइट कर रहा है आपको? आप जो सिरात मुस्तकीम पूछ रहे हैं ना भाई, नमाज में जाके क्या करते हो यार? आप लोग क्या करते हो? सिरात मुस्तकीम पूछते हैं ना, खुदा के नाक में दम करते हो। सही कह रहा हूँ मैं? इकबाल भाई के घर चले जाऊँ, मेरे को केरला जाना है, रूट बताओ, सुबह में बता दिए, दोपहर में, शाम में, रात में, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो क्या करेंगे ना? घर छोड़ के भागते नहीं, लट ला के मेरा सर फोड़ देते हैं। अरे पागल, तेरे को जाना है ना आना है, कहीं को रोजाना आके पूछ के जा रहा है भाई। तेरे को चलना है ना, जाना है ना आना है, कहीं को नाक में दम कर रहा। अल्लाह मियाँ के नाक में मुसलमान वैसे दम कर रहा है। अल्लाह मियाँ सिरात मुस्तकीम बताओ, अल्लाह मियाँ सिरात मुस्तकीम बताओ। अल्लाह मियाँ बता दिया है यार, सिरात मुस्तकीम करो ना। पढ़िए जरा 151 से 153 तक शरफू भाई। 9 पॉइंट गिनवाया गया है। हाँ, 9 है। आज पूरा दिन जो है इस्लाम पूरा कर दिया, वही तुम्हारा सिरातुल मुस्तकीम कहा है। पढ़िए। तो क्या हम इसके अंदर दूसरे जो अहकाम खुदा के हैं उसको भी शामिल कर ले सकते हैं? भाई पहले तो सिरात मुस्तकीम किसको कह रहा है खुदा, उसको सुन लेते हम लोग। बार बार रिपीट हुई से बात है। हाँ, मेरा एक कुरान का एक और तरीका है, नसीहत हमेशा बार बार रिपीट होती है। 151, 152, 153 के अंदर कहो आओ 9 पॉइंटों पर बताया। सुन लीजिए। रब ने तुम पर हराम की है ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो, और माँ बाप के साथ नेक सलूक करो, और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। हम तुमको भी रोज़ी देते हैं और उनको भी, और बेहयाई के काम के पास ना जाओ, खा वो जाहिर हो या पोशीदा, और जिस जान को अल्लाह ने हराम ठहराया उसको ना मारो मगर हक पर। ये बातें हैं जिनकी खुदा ने तुम्हें हिदायत फरमाई है ताकि तुम अकल से काम लो। और यतीम के माल के पास ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँच जाए। और नाप तोल में पूरा इंसाफ करो। हम किसी के जुम्मे वही चीज़ लाजिम करते हैं जिसकी उसे ताकत हो, और जब बोलो तो इंसाफ की बात बोलो, ख्वाह मामला अपने रिश्तेदार ही का हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। ये चीज़ें हैं जिनका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है ताकि तुम नसीहत पकड़ो, और अल्लाह ने हुक्म दिया कि यही मेरी सीधी शाह रहा है, बस इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलो कि वो तुमको अल्लाह के रास्ते से जुदा कर देंगे। ये अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है ताकि तुम बचते रहो। क्या कहा गया साहब? इन्ना हाजा सिरातल मुस्तकीम। जो नमाज में 52 मरतबा खुदा के नाक में दम करते हो जाके, ये बताया है वो, ये मेरी सिरात मुस्तकीम। स्पेसिफिक आंसर है, वो आगे की लो क्या पीछे की लो क्या, वो आप लेना है तो ले लीजिए, मत लीजिए। इन्ना हाजा सिरातल मुस्तकीम, यही है मेरी सिरात मुस्तकीम। 10 पॉइंट है, 9 पॉइंट। 10 अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना, पहला पॉइंट।
9 मान लीजिए, चलिए मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, 9-10 में कुछ फ़र्क नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, अल्लाह के अलावा तुम किसी की इबादत नहीं करोगे, इससे मतलब क्या होगा? सादी सीधी बात है कि वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू ही हम गॉड को जानते हैं। इसके अंदर जो इस किताब में लिखा हुआ है, इसके अलावा तुम कोई दूसरी चीज़ें लेके इधर उधर इज़मों को ख़रीद के भटकेंगे नहीं। अपनी जो भी रहनुमाई लेंगे इस किताब में से लेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? माँ बाप के साथ में नेक सुलूक करो। खुदा का क्या लेना देना है यार माँ बाप के साथ में? माँ बाप की खिदमत करते हैं तो खुदा की इबादत हो रही हो। बच्चों की तरबियत अच्छी करते हैं तो खुदा कहता है ये मेरी इबादत कर रहे तुम। यतीम को धक्का नहीं दे रहे हैं तो आप बोलते खुदा है मेरी इबादत कर रहे हो। खुदा से आए तो पैमान को पूरा कर रहे हो। और अल्लाह बोलता क्या तुम अपनी अक्लों से काम नहीं लेते? ये सिरात मुस्तकीम थी जो मुसलमान जाकर 5 मरतबा दिन में खड़े रह के 52 मरतबा अपने खुदा से पूछता है। अपने खुदा से कह रहा हूँ, पता नहीं कौन है उसका खुदा जिससे जाके पूछते हैं लोग। उसको जब पूछ रहा है तो 52 मरतबा दिन में पूछ रहा और 20 साल से पूछ रहा और उसको अभी तक रास्ता नहीं मालूम पड़ा। माई सिंपल क्वेश्चन इज, अभी रास्ता बता दिया, यही है मेरी सिरात मुस्तकीम। अब मेरा सवाल है, पूछोगे या करोगे? तब बताओ मेरे को। खत्म। खुदा की कसम एक आदमी भी नहीं करेगा। बोलो तो इंसाफ का बोलो, यहाँ पर लिखा हुआ है। एक आदमी भी नहीं बोल सकता बोली यहाँ पर है। वो मैच्योरिटी पे हम लोग आए नहीं अभी तक। तो भैया सबसे पहले अपनी इस्लाह करना सीखो। ये 9 पॉइंट के अंदर से आप देखिए कि आप ग्रेजुएट कितनों के हुए हैं। अगर ये 9 पॉइंट्स आप अपनी लाइफ के अंदर इख्तियार कर लेंगे, आप खुदा की सीधी राह पे आ गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुदा कह रहा है। You don't require anything else. This book is so simple. इस किताब के इन्विटेशंस इतने सिंपल हैं। अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, अपने खौल और फेल को पूरी तरीके से निभाओ। गवाही देना है तो ईमानदारी के साथ में गवाही। भाई ये नास्तिक को भी मंजूर है, सरदार जी को भी मंजूर है, हिंदी को भी मंजूर है, मुसलमान को भी मंजूर। हाँ, बकरीद के दिन बकरा काटो, किसको मंजूर है? हज को जाके मक्के को किसको मंजूर है? रमज़ान के 30 दिन भूखे मरो, किसको मंजूर है? सिर्फ मुसलमानों को। इस किताब के अंदर कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जो सारी इंसानियत के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यह किताब तमाम इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं है। यह मुसलमान तो नाजायज़ कब्जा करके बैठे हैं इस किताब के ऊपर। यह मुसलमान मौलवी या मोहम्मदन मौलवीस इस किताब के ऊपर लैंड ग्रैबर्स है। जैसे लैंड ग्रैबर्स होते बुक ग्रैबर्स है। ये किताब सादे सीधे लोगों की किताब है। इसके लिए कोई तफसीर चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करो? इसके लिए कोई, हाँ, तिबरी साहब बैठ के किताब लिखेंगे और जो है और कोई एक मुफस्सिर बैठ के कहानी लिखेगा इसके अंदर से? झूठ मत बोलो के लिए क्या तफसीर करोगे यार तुम? डू यू नीड तफसीर? तो भैया मैं अभी भी आपसे यही कहूँगा, आप अकीदे के एतबार से बिल्ली की 5 टांग मानते हैं या 4 मानते हैं, वो आपका ज़ाती प्रॉब्लम है। मेरा कोई लेना देना नहीं उससे। फरिश्ते के 2 पर है या 12 पर है, वो आपका प्रॉब्लम है। एटलीस्ट अपने आप को इस एंगल के अंदर जो समाज से जुड़ के मॉरल है, जो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, खुदा के वास्ते कम से कम यहाँ से तो कुरान का आगाज़ कर लो अपनी ज़िंदगी में। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। न्यूज़ सुना है क्या बांग्लादेश में कोई